క్లీనింగ్ చేపించుకుంటున్నారు. దే మస్ట్ డూ ద రూమ్ క్లీనింగ్. హూ విల్ క్లీన్ దేర్ రూమ్స్? ఓకే, వన్స్ స్వీపర్ వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తారు, నాలుగోసారి పిల్లలు ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోరు? పిల్లలతో పాటు టాయిలెట్ కడిపిస్తున్నారు. వై కాంట్ దే క్లీన్ దేర్ ఓన్ టాయిలెట్స్? इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो तेलंगाना की आईएएस ऑफिसर डॉक्टर वीएस अलगू वर्षिनी की है, जिसमें वो कह रही हैं कि छात्रों को कमरे की सफाई करनी चाहिए। उनके कमरे कौन साफ करेगा? एक बार को सफाई कर्मचारी साफ कर देगा, वे अपने शौचालय खुद क्यों नहीं साफ कर सकते? इसमें क्या गलत है? मैं किसी को लग्जरी नहीं दे सकती कि वो सिर्फ बैठे रहें। आईएएस ऑफिसर डॉक्टर वीएस अलगू वर्षिनी के इसी बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। दलित छात्रों से शौचालय साफ करने के लिए कहना उनको अब भारी पड़ गया है। इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान में लिया है और राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है। आयोग ने उन्हें 15 दिनों के अंदर आरोपी आईएएस ऑफिसर पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। तो वहीं इस मामले में रेवंत रेड्डी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं शेष भारत। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की सचिव डॉक्टर वीएस अलगू वर्षिनी का हफ्ते भर पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसमें वो कथित तौर पर गुरुकुल स्कूल के छात्रों को टॉयलेट और हॉस्टल के कमरों की सफाई करने के लिए कह रही हैं। हालांकि आईएएस ऑफिसर का कहना यह है कि उनके बयान को काट छाट कर पेश किया गया। ऐसा क्या कहा था अब आईएएस ऑफिसर डॉक्टर वीएस अलगू वर्षिनी ने, जिस पर सियासत तेज हो रही है? आप खुद ही सुन लीजिए। क्लीनिंग చేపించుకుంటున్నారు. దే మస్ట్ డూ ద రూమ్ క్లీనింగ్. హూ విల్ క్లీన్ దేర్ రూమ్స్? ఓకే, వన్స్ స్వీపర్ వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తారు, నాలుగోసారి పిల్లలు ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోరు? పిల్లలతో పాటు టాయిలెట్ కడిపిస్తున్నారు. వై కాంట్ దే క్లీన్ దేర్ ఓన్ టాయిలెట్స్? టీచ్ దెమ్ క్లీనింగ్ శ్రమదాన్. వై దే కాంట్ డూ? దే మస్ట్ డూ. It is not something government is imposing. Government impose చేస్తుందని ఎవరైనా రాస్తే రాయనిద్దాం. I am not bothered, you should not be bothered. Government is not there to harass children and create cronies. Government is there to provide a holistic environment where child will have ఇంటిలో ఉంటే ఏమి చేసుకుంటూ చదువుతారో అదే వాతావరణం మన దగ్గర ఉంటే చదువుతారు. అంతమంది పిల్లలు హ్యూజ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి మనకి సపోర్ట్ స్టాఫ్స్ కొంతమంది ఉంటారు. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షాల్ డూ అ షేర్డ్ డ్యూటీ. And all principals should create this enabling Vatavaranam. This is how we will go. This is the growing phase of a child. I cannot give luxury that after 11th and 12th standard the child will go and sit. వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు తాగబోతు పేరెంట్స్ ఉండొచ్చు. లివింగ్ షుడ్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డే టు డే యాక్టివిటీ ఫర్ ద చైల్డ్. And that responsibility you all must do. Take it very, very seriously and you all must follow that responsibility. आईएएस ऑफिसर के इसी बयान के बाद मामला बढ़ा तो फिर उन्होंने एक्स पर एक और ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए पूरे इस मामले को लेकर सफाई दी और कहा कि छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण ना करें और ये भी कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की कमी के आरोपों को भी निराधार बताया और कहा कि घर पर माता पिता की मदद करना बच्चों की सामान्य दिनचर्या है, इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। अब इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर के साथ एक फोन कॉल पर हुई बातचीत में उन्होंने इस मामले को लेकर पूरी सफाई दी है, सुनिए। So in the annual calendar, as a part of every weekend activity, we have 1 hour dedicated for Shramdan. Okay. In the morning hours, Sunday morning or Saturday morning hours, we have dedicated for 1 week it would be ground cleaning, 1 week it would be residential block cleaning, which includes even the toilet cleaning activities. Okay. Dormitories and toilet cleaning. Then 1 week it would be academic block cleaning activities. So it is almost like, say, all our schools does not have NSS. Okay. So, and also Swachh Bharat, we all of us do it only for 1 day or something like that. So Yeah. what we thought in the whole annual calendar, Shramdan should become a part of the children activity. Gurukulam Society, we give the best of the education, including mental health and all that. All right. So this, as usual, this 2.5 hours conversation, see, there are many layers, you know. In the administration, many reforms we are bringing, many audit inquiries are being unearthed.
Okay. So they cannot influence me. So all that they can do is tarnish my image. So they have Mhm. nicely edited this 2.5 hour clip and put whatever is in between, whatever they wanted, those words they retained and they're Mhm. circulating. बता दें कि बीआरएस नेता डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या उनके बच्चे उस स्कूल के टॉयलेट साफ करते हैं जिसमें वो पढ़ रहे हैं। उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले दलित छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो वहीं बीआरएस की एक दूसरी नेता ने भी उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि बीआरएस शासनकाल में प्रत्येक सामाजिक कल्याण स्कूल को सफाई के लिए 4 अस्थायी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए मासिक दिए जाते थे, लेकिन मई 2025 से कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया। बीआरएस की नेता कविता ने यह भी आरोप लगाया कि 240 स्कूलों में सहायक देखभालकर्ताओं को हटा दिया गया, जिसके कारण छात्रों को वार्डन और रसोई का काम करना पड़ रहा है। अब आईएएस ऑफिसर अलगू वर्षिनी के इस बयान को लेकर आगे तेलंगाना में और कितनी सियासत देखने को मिलती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि शेष भारत में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।